Okay. Here we are doing some more sums on the concept of tangents and normals. Okay, so again we have a question where we are going to find out the equation of tangent to the curve, where you can say the curve cuts the x-axis. Okay, again the graph of this curve, we don't need it entire graph, we can make it. We have made such graphs of rational functions in the class, so we can make a graph entirely at x equal to 2 and at x equal to 3 you might get you'll get vertical asymptotes. At 7 you will get 0. That is where the graph will meet x-axis. So apne utna hi chahiye. So what we want is where the curve will meet x-axis. So I can say the curve will meet x-axis at 7, 0. Okay, so we can have a point 7, 0, and there will be a graph like this going. Okay, so 7, 0 is a point where the curve is going to meet x-axis. X-axis मतलब y coordinate 0 कब होगा? At x equal to 7. ठीक है, सो अभी हम लोग को यहां पे स्लोप फाइंड करना है. सो 7,0 पॉइंट तो मिल गया. दैट इज द पॉइंट वेयर वी कैन से दैट ग्राफ इज मीटिंग एक्स एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, राइट. अब उसके बाद अभी हम लोग को फाइंड आउट करना है स्लोप ऑफ द कर्व, राइट. स्लोप ऑफ द tangent, not curve, sorry, at 7, 0. So for that I see there is multiplication. यहाँ पे u by v rule apply करना पड़ेगा. So the better is we take log on both sides. We'll use logarithmic differentiation. So log to the base e on both sides will give me log x minus 7. Okay, then minus log x minus 2 minus log x minus 3, right. So when we are taking log on both sides, we get log x minus 7 minus log x minus 2 minus log x minus 3, and then when we are differentiating, यहाँ पे by chain rule आ जाएगा 1 by y into derivative of y with respect to x, that is dy by dx, is equal to 1 by x minus 7 into derivative x minus 7, 1 आएगा, चेन रूल ही लगेगा, 1 by x minus 2 minus 1 by x minus 3. Okay, so this is what is the differentiation. This is the differentiation which we are going to get, right. So ultimately what is dy by dx? Okay, so dy by dx क्या हो जाएगा? dy by dx हो जाएगा y upon, right, x minus 7 minus y upon x minus 2 minus y upon x minus 3. मतलब y सबसे हम लोग ऐसा मल्टीप्लाई कर सकते हैं. So that is what the dy by dx is, right. So therefore finally अगर मुझे dy by dx लिखना है तो डेरिवेटिव क्या लिखेंगे हम लोग? What derivative dy by dx will be written as? We can put this x minus 7 upon x minus 2 into x minus 3 again. So what we are going to get dy by dx is, y की जगह पे डालेंगे तो यहाँ पे तो x minus 7 और x minus 7 कट हो जाएगा. So 1 upon x minus 2 into x minus 3 बचेगा, right, माइनस यहाँ पे हम लोग y सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x minus 7 upon x minus 2 the whole square into x minus 3 आएगा, माइनस यहाँ पे भी हम लोग अगर डालेंगे तो x minus 7
अपॉन x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 द होल स्क्वायर आएगा। ये हम लोग ना डेरिवेटिव इसका u by v रूल से भी निकाल सकते थे, बट राइट नाउ व्हाट आई हैव टेकन इज आई हैव डन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ये मल्टीप्लिकेशन को हम लोग ने सम में कन्वर्ट कर दिया, डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। वी गेट y अपॉन x माइनस 7, y अपॉन x माइनस 2, y अपॉन x माइनस 3। फिर हम लोग ने y को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो क्या है x माइनस 7 अपॉन x माइनस 7 वो कट हो जाएगा फर्स्ट में, बाकी में x माइनस 2 स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस 3 स्क्वायर हो जाएगा। बट हम लोग को कहाँ पे फाइंड करना है स्लोप ऑफ टेंजेंट? हम लोग को स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है एट अ पॉइंट 7,0 m। सो 7,0 पे हम लोग को अगर टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है तो हम लोग वो पॉइंट को वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो व्हाट इज स्लोप इक्वल टू dy by dx एट 7,0 व्हेन x कोऑर्डिनेट इज 7। ओके, सो व्हेन x कोऑर्डिनेट इज 7 हम लोग डाल देंगे तो हम लोग को यहाँ पे मिलेगा 1/5 इंटू 4 माइनस यहाँ पे 0 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे आप 7 डालोगे तो 0 आ जाएगा, राइट यहाँ पे आएगा 1/5 इंटू 4, यहाँ पे आएगा 0/5 स्क्वायर इंटू 4, यहाँ पे आएगा 0/5 इंटू 4 स्क्वायर, बट बाकी सब में 0 आएगा। सो व्हाट इज द स्लोप वी आर गोइंग टू गेट हियर? इट इज 1/20। तो स्लोप ऑफ tangent to the curve at 7,0 is 1/20, right? So अभी इक्वेशन मिल जाएगा फटाफट। सो यहां पे ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट था कि हम लोग स्लोप कैसे फाइंड करेंगे। तो स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? यूजिंग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। Okay, once you get the slope, it is very easy. Therefore, the equation of tangent will be or is, you can say y minus y1. So y coordinate अपना 0 है, is equals to 1/20 into x minus x1, x minus 7 हो जाएगा। So we get 20y is equals to x minus 7, and ultimately x minus 20y minus 7 is equal to 0. Right, that is what the final answer is. हमको क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन बोला था फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट वेयर इट कट्स x एक्सिस। x एक्सिस मतलब y कोऑर्डिनेट 0 कब होगा? 7 पे। तो वी हैव 7,0 एज अ पॉइंट वेयर इट इज गोइंग टू कट x एक्सिस। स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए केयरफुली यहाँ पे हम लोग ने इसको सम में कन्वर्ट कर दिया रादर देन अप्लाइंग u by v रूल। वो भी अप्लाई कर सकते थे, बट आई डिड दिस एंड देन y गेट्स मल्टीप्लाइड, सब्स्टिट्यूटेड y, finally substituted 7. Okay, so यहाँ पे स्लोप फाइंड करना क्रूशियल था, इंपॉर्टेंट था, वो हम लोग ने फाइंड कर लिया है एंड वी गेट द इक्वेशन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व x raised to 2/3 plus y raised to 2/3 equal to 2 at 1,1। टेंजेंट भी चाहिए, नॉर्मल भी चाहिए। ओके, सो व्हाट हैपेंस इज वी हैव अ कर्व लाइक दिस एट 1,1 हम लोग को टेंजेंट भी चाहिए, एट 1,1 हम लोग को नॉर्मल भी चाहिए। सो पहले हम लोग टेंजेंट बना लेते हैं, राइट? सो आई डिडंट एक्सप्लेन एट द बिगिनिंग व्हाट नॉर्मल इज। सो ये हो गया हम लोग का टेंजेंट। Normal lines are the lines which are perpendicular to the tangent and passing through the same point. So ये हम लोग का normal हो गया, बहुत simple है। Normal is perpendicular to the tangent. It is passing through the same point, but it is perpendicular to the tangent. बराबर है? So अभी हम लोग slope of normal ले लेते हैं as slope of normal हम लोग को मिलेगा, slope of tangent हम लोग को मिलेगा mt, और फिर हम लोग यहां पे से फाइंड कर लेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। ओके, तो पहले हम लोग को स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए हम लोग को इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो x raised to 2/3 प्लस y raised to 2/3 इक्वल टू 2। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x में हम लोग को मिलेगा 2/3
x raised to 2/3 minus 1 is minus 1/3, right? 2/3 minus 1 आ जाएगा, plus we have 2/3 into y raised to 2/3 minus 1 is minus 1/3 dy by dx equal to 0. I repeat, आपको मिलेगा 2/3 x raised to 2/3 minus 1 is minus 1/3, again 2/3 y raised to minus 1/3 आएगा, and dy by dx equal to 0 आएगा. हम लोग यहाँ पे 2/3 obviously हम लोग निकाल सकते हैं because सामने 0 है. So what is the derivative you're going to get? Minus x raised to minus 1/3 अपॉन y raised to minus 1/3, जिसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस क्यूब रूट ऑफ, यस इट इज क्यूब रूट ऑफ y अपॉन x, उल्टा हो जाएगा. सो डेरिवेटिव इज क्यूब रूट ऑफ y अपॉन x. इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव क्यूब रूट ऑफ y अपॉन x. ओके, एंड देयरफॉर इफ यू वांट स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, ओके, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा डेरिवेटिव एट 1,1. डेरिवेटिव एट 1,1 विल बी -1. बहुत सिंपल है बिकॉज कोऑर्डिनेट्स बहुत सिंपल है. हम लोग को 1,1 खाली सब्स्टिट्यूट करना है. एक बार डेरिवेटिव फाइंड कर लिया फिर आसान हो जाएगा. खाली हम लोग को वहां पे सब्स्टिट्यूट करना है 1,1 और फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल मिलेगा. ना स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे मिलेगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी -1. ओके, सिंस टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर, लाइंस आर परपेंडिकुलर. अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो हम लोग को प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स जो है, अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो हम लोग को प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स जो है वो -1 मिलेगा, राइट? सो लाइंस परपेंडिकुलर है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स जो है वो -1 मिलेगा. एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोग को यहाँ पे मिला है -1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो हो जाएगा 1. स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -1, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज गोइंग टू बी 1. ठीक है, सो हम लोग को स्लोप मिल गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया -1, स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया 1. वंस वी हैव गॉट ऑल दिस, इक्वेशन फाइंड करना बहुत आसान है. सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पहले फाइंड कर लेते हैं. सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना बहुत आसान है. वी गेट y minus y1 is equals to slope of tangent into x minus x1, राइट? जिससे हम लोग को मिलेगा -x, वो यहां पे आ जाएगा. सो x plus y minus 2 इक्वल टू 0. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी चाहिए. नॉर्मल मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इट इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट. तो वहां पे अगर इक्वेशन लगाना है तो हम लोग स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे. स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे, स्लोप 1 यूज करेंगे, पॉइंट सेम ही रहेगा. सो y minus y1 is equals to 1 into x minus x1. सो अल्टीमेटली क्या मिलेगा? इक्वेशन y equal to x. So that is the equation of normal, that is the line passing through origin, y equal to x बोलो, या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि it is x minus y equal to 0, right? So x minus y equal to 0. हाँ, so simple है. पहले हम लोग ने डिफरेंशिएट कर दिया इस इक्वेशन को, फाइंड कर लिया dy by dx. हम लोग ने वहां पे सब्स्टिट्यूट किया 1,1, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आया -1 एंड उसमें से स्लोप ऑफ नॉर्मल आया 1. दिस इज इंपॉर्टेंट. द लाइंस आर परपेंडिकुलर. टेंजेंट का स्लोप फाइंड करोगे तो टेंजेंट का स्लोप इन जनरल हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, टेंजेंट का स्लोप आएगा dy by dx से. ठीक है, और नॉर्मल का स्लोप क्या रहेगा? नॉर्मल का स्लोप रहेगा नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दिस. इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेना है, सो दैट इज dx by dy.
नेगेटिव रेसिप्रोकल रहेगा, dx बाई dy रहेगा, नेगेटिव dx बाई dy रहेगा, यहाँ पे dy बाई dx है, यहाँ पे नेगेटिव dx बाई dy है. स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ tangent. Okay, so आगे बढ़ते हैं. Now this time what they have said is find the equation of tangent to the curve given by x is equals to a sin cube t and y is equals to b cos cube t. तो यहाँ पे पैरामेट्रिक इक्वेशंस दिया हम लोग को. तो हम लोग को जब स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है dy बाई dx लगेगा. पहले हम लोग को स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है और फिर हम लोग को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है. ओके, अब लेकिन पॉइंट क्या होगा? सो यहां पे हम लोग को कर्व्स का इक्वेशन दिया हुआ है. सो पॉइंट एट विच वी आर गोइंग टू मेक टेंजेंट, सो यहां पे आ जाएगा x कोऑर्डिनेट में आएगा a साइन क्यूब पाई बाई 2, कॉमा y कोऑर्डिनेट में आएगा b इंटू कॉस क्यूब पाई बाई 2. सो हम लोग यहां पे डाल देंगे t को पाई बाई 2. ओके, आई रिपीट, t को हम लोग पाई बाई 2 सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट वी गोइंग टू गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ps a, 0. ओके, फिर हम लोग यहां पे टेंजेंट बनाएंगे. चाहिए तो बाद में नॉर्मल भी ढूंढ सकते हैं. परपेंडिकुलर टू टेंजेंट पासिंग टू द सेम पॉइंट इज नॉर्मल, राइट? सो हम लोग ने पहले पाई बाई 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया इन द पैरामेट्रिक इक्वेशंस और उसके कोऑर्डिनेट्स मिल गया a, 0. एक बार हम लोग को कोऑर्डिनेट्स मिल गया तो हम लोग को फिर इक्वेशन फाइंड करना आसान रहेगा. हम लोग को फाइंड आउट करना है इक्वेशन, तो हम लोग पहले स्लोप फाइंड कर लेंगे. अब स्लोप फाइंड करना है तो dy बाई dx इज द स्लोप. dy बाई dx विल बी dy बाई dt आएगा यहां पे अपॉन dx by dt. Okay, dy by dx will be dy by dt upon dx by dt which will be equal to, इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे y को. सो हम लोग को मिलेगा b इंटू 3 cos square t into derivative of cos t will be sin t upon, when I say a sin cube t, तो a into 3 sin square t into derivative of sin t will be cos t. So dy by dx will be dy by dt upon dx by dt. 3 cos square t into derivative of cos t will be minus sin t. नीचे आएगा 3a sin square t into derivative of sin t आएगा cos t, and what you can do is यहाँ पे हो जाएगा minus b by a cos t upon sin t बचेगा. ओके, एक cos कट हो जाएगा, एक sin कट जाएगा, 3 कट हो जाएगा, राइट? सो 3 कट हो जाएगा, एक sin कट हो जाएगा, एक cos कट हो जाएगा. वी आर गोइंग टू गेट नेगेटिव b by a cos t upon sin t which is cot t. ओके, cot t मिलने पर फिर उसके बाद हम लोग स्लोप फाइंड कर सकते हैं. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट? स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाय dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना, हम लोग को स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना पड़ेगा व्हेन t is pi by 2. तो हम लोग को मिलेगा माइनस b बाई a इंटू cot pi by 2. Cot pi by 2 is obviously cos pi by 2 upon sin pi by 2 which is going to be 0. Right, very important. हम लोग को फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. सो उसके लिए हम लोग को स्लोप फाइंड करना पड़ेगा. dy by dx is dy by dt upon dx by dt, और उससे हम लोग को मिलेगा माइनस b by a cot t. अभी हम लोग इसमें t s pi by 2 अगर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो 0 आ रहा है. सो स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 आ रहा है. सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज
y माइनस y1 पॉइंट है हमारे पास, इज इक्वल्स टू स्लोप भी है 0 into x minus x1, but that means you're going to get y as 0. Y is 0 मतलब actually में x axis ही यहाँ पे tangent है, right? Question is find the equation of tangent to the curve. Tangent to the curve, curve जो है उसका parametric equations दिया हुआ है, t वेरी होगा, x and y वेरी होगा, तो हम लोग को कर्व मिलेगा। वैसा सिचुएशन दिया हुआ है, हम लोग ने t को पाई बाई 2 डाला, a,0 पॉइंट आ गया, दैट इज x एक्सिस, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई dt, उसमें हम लोग ने पाई बाई 2 डाला तो स्लोप आ गया 0, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इक्वल टू 0. सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव चोजन एग्जांपल्स टू कवर ऑल द टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन, द मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन. So earlier examples in the previous video were mostly based on chain rule. Then I have showed you an example where we have logarithmic differentiation. Log लेके differentiate करना है. This is the example of logarithmic differentiation. पहला वाला chain rule का था. Then we have taken an example of implicit differentiation. ऐसा जब हम लोग को function आता है तो वी से इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग को लगता है implicit differentiation. When y is written as fx, that is explicit representation of a function. When x and y are mixed in the function and we'll have to find out y, or we have to isolate y, and that is called as implicit representation of a function. To differentiate that we have used implicit differentiation. Chain rule हो गया, logarithmic differentiation हो गया, implicit differentiation हो गया, फिर ये हम लोग ने किया parametric differentiation. So ऐसे हम लोग ने differentiations भी cover किए हैं while doing the examples of tangents and normals. Okay. Now next is the last example which we are going to do. यहाँ पे हम लोग को बोला है find the equation of normals to the curve y is equals to x cube plus 2x plus 6. Normals का equation चाहिए, y is equals to x cube plus 2x plus 6 which are parallel to this line. Okay, so हमारे पास यहाँ पे कर्व है, बराबर. कर्व के ऊपर पॉइंट P है, पॉइंट P मालूम नहीं है हम लोग को, so let us say P is x1, y1. राइट, P पे जो है हम लोग टेंजेंट बनाएंगे. टेंजेंट को परपेंडिकुलर रहेगा नॉर्मल, सो दिस इज टेंजेंट, दिस इज नॉर्मल. नॉर्मल इज गोइंग टू बी पैरेलल टू अ स्ट्रेट लाइन. द आइडिया इज ये नॉर्मल स्ट्रेट लाइन को पैरेलल रहेगा, नॉर्मल पैरेलल रहेगा टू दिस स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन है x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0. राइट, अब स्लोप क्या होता है इन द जनरल इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. स्लोप क्या होता है माइनस a बाय बी. सो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में स्लोप रहेगा माइनस 1 बाय 14. यहां पे स्लोप हो जाएगा माइनस 1 बाय 14 माइनस a बाय बी. ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में स्लोप रहेगा माइनस a बाय बी, तो यहाँ पे स्लोप हो जाएगा माइनस 1 बाय 14. ओके, सो यहां पे हम लोग को बोला गया है सिंस नॉर्मल पैरेलल टू, सिंस वी वांट नॉर्मल पैरेलल टू x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 14. Slope of normal is equal to minus 1 by 14. Right? Slope of normal क्या है? It is negative reciprocal of dy by dx. It is negative reciprocal of dy by dx. Slope of normal क्या है? It is negative reciprocal of dy by dx at x equal to x1. बराबर है.
राइट। तो अभी हम लोग के पास जो कर्व है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, उसको जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 को जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 बाय यहाँ पे आ जाएगा 3x1 स्क्वायर प्लस 2, राइट, इज इक्वल टू, सो यहाँ पे हम लोग जब आएगा तो -1 बाय डेरिवेटिव निकालना है dy बाई डी एक्स, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या रहेगा 3x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 0 रहेगा ना यहाँ पे, सो 3x1 स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू -1 बाय 14. So ultimately what I'm going to get is 3x1 square plus 2s 14, 3x1 square is 12, which implies we are going to get x1 square is 4, x1 square is 4 आएगा, so that implies x1 is plus or minus 2, right? x1 आएगा plus or minus 2. अगर x1 2 है तो y1 क्या रहेगा 8 प्लस 4, यहां पे हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है 2, 8 प्लस 4 प्लस 6, दैट इज गोइंग टू बी 18. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन will be normal का y minus y1, that is y minus y1, y minus 18 is equals to -1 by 14 into x minus x1, right? ये पहला इक्वेशन आएगा. अगर x1 -2 है तो y1 क्या रहेगा, y1 रहेगा -8 -4 plus 6, -8 -4 plus 6, right? That is -12 plus 6, which is -6. So यहाँ पे हमको मिलेगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल. स्लोप तो ऑलरेडी हमको मालूम ही है, so y minus y1 तो plus 6 हो जाएगा, is equals to -1 by 14. स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1 by 14, x minus x1, right? So we have to understand in this problem हमको करना क्या है, हम लोग को चाहिए नॉर्मल टू द कर्व पैरेलल टू x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0. तो x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0 का स्लोप जो है और नॉर्मल का स्लोप जो है वो दोनों सेम रहेगा, दे आर पैरेलल लाइंस. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1 by 14 एंड देन वी गेट डेरिवेटिव निकालना है 3x स्क्वायर प्लस 2, वो यहाँ पे नेगेटिव रेसिप्रोकल में आएगा. टेंजेंट का हम लोग ने बात किया था dy बाई डी एक्स रहेगा और नॉर्मल का -1 बाई डी बाई डी एक्स रहेगा. अगेन टेंजेंट का स्लोप अगर चाहिए तो dy बाई डी एक्स एंड दोनों का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव रेसिप्रोकल आना चाहिए, इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा -1 बाई डी बाई डी एक्स. ओके, सो दोनों का प्रोडक्ट हमेशा -1 आना चाहिए. So once I find that 3x1 square plus 2 becomes 14, x1 is plus or minus 2, x1 2 आएगा, y1 18 आएगा, पहला इक्वेशन, x1 minus 2 आएगा, y1 minus 6 आएगा, दूसरा इक्वेशन. So these are the two equations of normals. So normal का slope मिला, उससे हम लोग ने point find किया and ultimately what I get is equations of normals. Okay, so this is how we are going to do tangents and normals application. Right, and that's it. This is over. Next, when we are meeting, we are doing the next application, that is derivatives as rate measurer. Okay.